शुक्रिया गुरुवर सदा तेरा शुक्रिया गुरुवर सदा तेरा सहारा दिया मुझे तूने हर दफा 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 शुक्रिया कुर्बान तेरे जाऊं कुर्बान तेरे जाऊं कुर्बान तेरे जाऊं कुर्बान तेरे जाऊं दिल जान सब अपनी तेरे नाम में कर जाऊं दिल जान सब अपनी तेरे नाम में कर जाऊं मुझे क्या पता भलाई है क्या मेरी क्या पता भलाई है क्या मेरी तेरे आसरे गुजरती है जिंदगी 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 जो मर्जी तेरी वही मेरी है रज़ा जो मर्ज़ी तेरी वही मेरी है रज़ा सहारा दिया मुझे तूने हर दफा शुक्रिया प्रोग्राम है और हमारे सभी गुजरात से आए भाई बहन यहाँ पर है लेकिन कुछ लोग पंजाब से भी आए उनका बड़ा मन था कि एक लाइव बीच में पंजाबी की हो जाए करो शुक्रिया सतगुर सदा तेरा करो शुक्रिया सतगुर सदा तेरा बोले सदगुरुदेव महाराज की जय शिवा के बिहारी लाल की जय गीता ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम गीता
ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। गीता ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। गीता ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हाँ, गीता ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। गीता ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सदगुरुदेव महाराज जी जय। गीता माता की जय। I have the great pleasure to request some kind words from a very long-standing member of our society. He has many titles, has many roles that he fulfills in Leicester, one of the oldest organisations and temples in Leicester. He's not only the Deputy Lieutenant to the Royal Family, he's a trustee of a mandir that we all know of, the Sri Sanatan Mandir. He is a trustee of the Leicester Council of Faiths. He's a trustee of the Gujarat Hindu Association. He's also a presenter on the Sanskar and Sabras radio that we probably listen to every day. And he's the Assistant Secretary of the Leicester Hindu Festival Council. More importantly, the Sanatan Mandir has just celebrated the 50th anniversary in Leicester, 50 years of a trusted mandir in Leicester. On that note, please give a warm welcome to Mr. Raman Bhai Baba, who can give us some kind words, and also congratulate him on his 50th anniversary for the mandir today. Warm welcome for Raman Bhai Baba. बोलो श्री कृष्ण कन्हैया, बोलो श्री गीता माता की। It is my privilege and honor to welcome Swamiji, Swami Gyananand Ji at this Gita festival. Now this is the second Gita festival in Leicester, and this has been organized by Vinod Ji and Jitesh Ji for last 2 years. And हम स्वामी जी के चरणों में, ज्ञानानंद जी के चरणों में हम वंदन करते हैं, पाए लगते हैं कि हमारे लेस्टर में आप पधारे, और लेस्टर की ओर से, सनातन मंदिर की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। लेस्टर की हम On behalf of the trustees and the managing committee of the Sanatan Mandir, it is my great privilege to welcome you, sir, in Leicester. गीता का ज्ञान जो हमने कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तो हम बहुत भाग्यशाली है कि एक ज्ञान हमें मिल रहा है, और हमें मिल रहा है स्वामी ज्ञानानंद जी के चरणों से, उनके मुखारविंद से। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू, इट इज़ माय प्रिविलेज टू थैंक्स स्वामी ज्ञानानंद जी इन लेस्टर। અને આપણે પ્રાર્થના કરીએ ગુજરાતીમાં મેં કહે કે આ ગીતાનો સંદેશ એ આખા વિશ્વમાં તેઓ આપતા રહે, અને ગીતા સંદેશ એક જરૂરી છે। દરરોજ ગીતા વાંચવી એ પણ જરૂરી છે।
ગીતાનું જ્ઞાન કરવું એ પણ જરૂરી છે. અને ગીતા એ આપણો પુસ્તક નથી પણ એક મહાન ગ્રંથ છે. એ ગીતા માતા છે. તો ગીતા માતાને વાંચી ન શકો તો દરરોજ એક વખત પ્રણામ કરવો, વંદન કરવું, દીપ પ્રગટાવો અને ગીતાજીની પ્રાર્થના કરવી. So Sri Sanatan Mandir has celebrated the 50th anniversary of the opening of Sri Sanatan Mandir, Radha Krishna Patotsav. We really enjoyed last week and we celebrated this festival with a joy and festival. So we will also need some blessings from Swamiji as well, and I will extend my warm welcome to Swamiji to visit Sanatan Mandir whenever he is in Leicester or during this period. Thank you very much, and thank you again to Nikhil ji and Vinod ji for organizing this event. And they are organizing this festival in memory of the father, Mr. Rampal Singla. रामपाल सिंगला, तो हम रामपाल सिंगला के और से भी उनकी शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं. सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम. Swamiji, blessings for Raman Bhai Babaji and congratulations once again on his 50th anniversary. Thank you. आज हमारे बीच the most learned Dr. Markandeya Ahuja ji, Vice Chancellor of none less than 4 universities, Vice President of Jio Gita, and a true devout devotee of Guruji. I'd like for you to welcome him on to share some further words to explain a bit more about Guruji's organisation and some of the media that he has to share. Warm welcome for Dr. Ahuja. Thank you, Lester, for organizing the second Gita festival, and we are here on the second day. आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के वचनों को सुनेंगे जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों एक से हैं. जैसा कहते हैं वैसा ही अपने जीवन में करते हैं. और आज हमने लेस्टर के ओल्ड एज होम में उनकी करुणा को, उनकी ममता को, उनकी दया को, उनके प्रेम को, उनकी बुजुर्गों के प्रति भावनाओं को साक्षात रूप से देखा जब हम एक इंडियन ओल्ड एज होम में उनके साथ गए. ऐसे स्वामी ज्ञानानंद जी हमारे बीच हैं. मैं आप सब की तरफ से उनका इस व्यासपीठ पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. स्वामी जी गीता के मर्मज्ञ हैं. स्वामी जी के हाथों से निष्काम कर्म को स्फुटित होते मैंने देखा है. स्वामी जी की आंखों से मैंने लोगों के प्रति गीता की करुणा को बहते देखा है. स्वामी जी के कंठ से मैंने गीता के माधुर्य को सुना है. स्वामी जी के शब्दों में मैंने गीता के निशब्द को पाया है. स्वामी जी की हर गतिविधि में गीता ही गीता है. या मैं ये कहूं कि गीता के चलते फिरते साक्षात एनसाइक्लोपीडिया होने के साथ साथ गीता की एक प्रैक्टिकल पुस्तक भी है, एक प्रैक्टिकल एनसाइक्लोपीडिया भी है स्वामी जी. और हम सबको उनकी प्रेरणा मिली है, हम सबको उनका सहारा मिला है. तो निश्चित रूप से हम सब भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के सहारे को पा लेता है. कबीरदास जी ने लिखा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए. परंतु कबीरदास जी का बेटा वो भी एक सिद्ध पुरुष था. कमाल ने जो आगे लिखा वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है. कमाल ने लिखा, चलती चाकी देख के
दिया कमाल हंसाए जो कीलन के पास है, बाल न बांका हुए। तो आज हम उस कील के पास हैं जिनके साथ रहने में हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। और ऐसे न केवल महाराज जी हैं, परंतु महाराज जी की गीता भी हमारे लिए यही प्रेरणा देती है। महाराज जी की अनेक पुस्तकें सामने स्टॉल पर उपलब्ध हैं, जो महाराज जी लेस्टर के लिए स्पेशली बनाकर लाए हैं। वो गुजराती में भी हैं, जैसे गीता ज्ञान सुधा, 700 श्लोक गीता जी के काव्य रूप में आसान गुजराती भाषा में लिखे गए हैं। ऐसे ही गृहस्थ जीवन के लिए गीता जी से 7 श्लोक हमें क्या कहते हैं, वो भी गुजराती में महाराज जी ने लिखे हैं। गीता पढ़ो, गीता पढ़ाओ, बहुत ही सिंपल भाषा में महाराज जी ने 18 श्लोक गीता के लेकर हम सब के लिए गीता का सरलीकरण किया। इसके अलावा जो लोग पढ़ना नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं, महाराज जी ने उनके लिए कुछ पेन ड्राइव्स में गीता के 700 श्लोकों को काव्य रूप में और अपने कुछ भजनों को भी गाया है। ऐसा सब कुछ हमारे सामने उपलब्ध है। जो भी हमारे बंधु उनको लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से ले सकते हैं। कल महाराज जी ने 3 एस की चर्चा की। एक्टिव, दूसरा अलर्ट, तीसरा अवेयरनेस। निश्चित रूप से सार रूप में तो ये 3 एज ही हैं, परंतु यदि हम थोड़ा सा विस्तृत करें तो गीता हमारे लिए क्या कर सकती है। गीता चौथा ए यानी हमारे एटीट्यूड को नकारात्मक से सकारात्मक बनाने का काम करती है। गीता इज अ जर्नी फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। अर्जुन वॉज टोटली नेगेटिव, बट in the 18 chapters, after the 18 chapters of Gita, listening to the Lord Krishna, Arjuna turns totally positive. So Gita विषाद से आह्लाद की यात्रा है। और एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दूं तो भारत के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम एनडीए में सिलेक्ट होने के लिए देहरादून गए। 13 विद्यार्थी थे जो परीक्षार्थी थे और उनमें से 7 का सिलेक्शन होना था, और उन 7 में अनफॉर्चुनेटली एपीजे अब्दुल कलाम नहीं थे। और देहरादून से बहुत ही विषाद से भरकर, दुख से भरकर, संताप से भरकर, क्योंकि गाड़ी तक आने के पैसे भी नहीं थे देहरादून पहुंचने के, वापस आ रहे थे। ऋषिकेश पहुंचे तो उनका दिल पहाड़ से कूदने को हुआ, आत्महत्या को करने का हुआ, क्योंकि वापस जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। तभी उन्हें एक संत मिले ऋषिकेश में, गीता उनके हाथ में दी और एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी बुक विंग्स ऑन फायर में लिखा कि उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदला। वो कोई पुस्तक और नहीं थी, वो गीता ही थी, जिसे श्री अरबिंदो ने एक लिविंग क्रिएशन कहा। इट्स नॉट ए बुक, इट्स ए लिविंग क्रिएशन। सो इट्स कीप चेंजिंग आवरसेल्व्स। 5वीं बात जो एक ही है वो है ऑथेंटिसिटी, प्रमाणिकता, क्रेडिबिलिटी। आज पूरी दुनिया प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में, जितने एमबीएस को हम पढ़ाते हैं, जितना बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, हम केवल और केवल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, परंतु गीता ऑथेंटिसिटी यानी क्रेडिबिलिटी की बात करती है। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण ए है हमारे जीवन का। अगला ए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो गीता का एल्ट्रुइज्म है, सर्वभूत हिते रता। गीता प्रत्येक प्राणी के भले की बात करती है, न केवल मनुष्य मात्र की, परंतु इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनकी बात गीता करती है। और अगली बात जो गीता है, हमारे अंदर एक ऐसा एपेटाइट जगाती है जो वांट का एपिट्यूड, जो वांट जगाती है, जिज्ञासा जगाती है। हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए सारा जीवन 7 अंकल्स पढ़ते रहे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, हुज, परंतु किसी ने
हमें वांट नहीं पढ़ाया, जिज्ञासा नहीं पढ़ाई। गीता जिज्ञासा की बात करती है, वांट की बात करती है, एपेटाइट की बात करती है। और फिर गीता हमें एक्लेमेटाइज करने की बात करती है। परिस्थितियां बदलती हैं परंतु मनोस्थिति ना बदले हमारी। परिस्थितियां कुछ भी हों, अच्छी हो, बुरी हो, विषाद हो, आह्लाद हो, सुख हो, दुख हो, परंतु हमारे मन की स्थिति ना बदले। वो कैसे ना बदले, वो गीता हमें सिखाती है। अर्जुन को द्रोणाचार्य से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिली, परंतु कहीं ना कहीं अर्जुन इस ट्रेनिंग को पाकर जब अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में गया तो उसके हाथ पैर कांप गए। तब उसको कुछ भी नहीं सूझा, उसका मन भ्रमित हुआ। यानी अर्जुन को परिस्थितियां बदलते ही जब सामने गुरुजन दिखाई दिए, सामने स्वजन दिखाई दिए, तो उसकी मनस्थिति बदल गई। तो गीता हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां भले ही बदले परंतु हमारी मनोस्थिति ना बदले। और इसलिए गीता को कहा जाता है कि अर्जुन को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग तो द्रोणाचार्य ने दी परंतु मेंटल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं दी। और वो मेंटल आर्ट की ट्रेनिंग भगवान कृष्ण ने दी। और उसी मेंटल ट्रेनिंग को पाने के लिए आज हम गुरु जी के समक्ष मौजूद हुए हैं, ताकि हम भी अपने जीवन में उस मेंटल ट्रेनिंग को ले पाए। फिर गीता अगला ए जो हमें सिखाती है, ऑटो स्टार्ट करने का काम करती है। गाड़ियां भी ऑटो स्टार्ट होने लगी तो आदमी क्यों ना ऑटो स्टार्ट हो, सेल्फ स्टार्ट। और इसीलिए भगवान ने पूरा प्रवचन देने के बाद अर्जुन से कहा कि इति ते ज्ञानम आख्यात गुह्यता गुह्यतरम। मैंने तेरे को जितना ज्ञान गुह्य से गुह्य था वो दे दिया, अब यथेच्छसी तथा कुरु। अब जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। यानी अब तू ऑटो स्टार्ट हो जा। ये गीता की खूबी है। और लास्ट दो बातें, गीता एक एम्पलीफायर का काम करती है। हमारे अंदर सुप्त शक्तियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन की भी 10% मन की शक्तियां, ब्रेन की शक्तियां प्रयोग हुई थी एंड ही वाज द जीनियस ऑफ जीनियस। तो सोचो हमारी कितनी होंगी। गीता हमारी सुप्त शक्तियों को जागृत करने का काम करती है, हमें मानव से महामानव बनाने का काम करती है। और फिर अडेप्ट, एम एंड इंटेंट हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। सब लोग इस दुनिया की यूनिवर्सिटीज में कंटेंट जनरेशन पर लगे, परंतु इंटेंट की बात कोई नहीं करता। इंटेंट की बात गीता करती है, इसलिए गीता हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। और आखिरी बात कि गीता हमें एंजेलिक बनाती है। गीता हमें मानव से महामानव बनाती है। गीता हमें नर से नारायण बनाती है। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भारत का उपहार है गीता। भारत का उपहार है गीता, जिसमें महाराज जी ने जोड़ा मानवता का श्रृंगार है गीता। तो इस श्रृंगार रूपी जीवन के श्रृंगार का आनंद लेने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं आप और महाराज जी के बीच में ज्यादा समय ना लगाता हुआ महाराज जी से आग्रह करता हूं कि वो हम सब पर, महाराज जी आज भी वेट करें। अभी स्वामीनारायण से महाराज जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। हम उससे पहले हम सब मिलकर गीता जी पर पुष्पांजलि दें। अच्छा, गीतांजलि करा। I welcome Ma'am Shivani Raja ji here. She is around and she is a newly elected MP from Leicester and first Indian to be so, and she was the first one to carry the poster of the Gita Festival, Leicester Gita Festival.
She herself was the first one to carry the poster, and Lord Krishna and Guruji has been very kind upon us and her victory. Congratulations to you, ma'am, and Maharaj ji presenting a copy of Bhagavad Gita to Shivani Raja ji. She's so young. इंडिया में तो ऐसे एमपीज देखने को नहीं मिलते हैं. Change of Leicester. And Leicester also takes the lead in this. So thank you, Leicester, for electing such a wonderful lady who believes in Gita. And please, may I request you to say a few words, Shivani Raja ji. Jai Shri Krishna. Thank you to you all for giving me your faith, your support, and your trust. I am truly humbled and grateful કે આ ચાન્સ આવ્યો છે મને તમારી સેવા કરવા માટે. આપણે બધાએ પૂરી મહેનત કરી છે over the last 4 weeks. And સાચું દિલથી કામ કર્યું છે. We've put our 100% and we've done it with the purest of intentions. And we are standing for સત્યનું કામ કરવા માટે આપણે ઊભા છે. So I personally want to thank each and every one of you for supporting me on this journey. And this wouldn't have been possible without all of the blessings and the Ashirvad that I've received from so many people. Vadilona Ashirvad, Gurujina Ashirvad, and countless others of the last 4 weeks. So thank you from the bottom of my heart. My profound gratitude to you all. And I look forward to working with each and every one of you to improve this city. And we have many more festivals like this Gita Festival here in our home city in Leicester. Thank you. Once again, congratulations to Shivani Raja, newly elected MP for Conservatives in the seat for Leicester East. She is the first Hindu MP for Leicester. It is an achievement itself. Well done, Shivani. We are very honoured and blessed to have present with us from the Sri Swaminarayan Gurukul in Rajkot in Gujarat, Param Pujya Gurudev Madhav Priyadas ji. पधार रहे तो हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं रही. स्वामी जी प्लीज गीतांजलि के लिए और पुष्पांजलि के लिए पैदा हो. दीप पूजन. या देवी द्रवन्ते सुंदरा
as the Gitanjali is happening right now, Pushpanjali. Swamiji just blessing Shivani Ranga. Leicester Gita Festival. Today we are most honoured to have from the Shri Swaminarayan Gurukul, Rajkot in Gujarat, Param Pujya Gurudev Madhav Priya Das ji. स्वामी जी, आपका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था और अब वो घड़ी आ गई है जब आप हम सब के बीच पैदा चुके हैं। मैं लेस्टर गीता फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विनीत सिंगला, लीड ऑर्गेनाइजर फॉर लेस्टर गीता फेस्टिवल, एंड डॉक्टर मार्केट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जीएवी इंटरनेशनल को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर आपका स्वामी जी स्वागत करें। Once again, Param Pujya Gurudev Madhav Priya Das ji from Swaminarayan Gurukul in Rajkot. स्वामी जी, आपके शब्दों के इंतजार है लेस्टर गीता फेस्टिवल से। इससे पूर्व कि हमारे परम पूज्य स्वामी माधव प्रियदास जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, हम केवल एक वाक्य में कहना चाहेंगे। पूज्य महाराज श्री स्वामी माधव प्रियदास जी हमारे भारत में, गुजरात में, अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा केंद्र है आपका। हजारों वहाँ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरुकुल के रूप में, और पूरे क्षेत्र में आपका एक अच्छा भाव है और आपके प्रति समाज ही नहीं, देश के संत समाज का भी एक अच्छा आदरणीय स्थान है आपका। हिंदू धर्म आचार्य सभा अपने भारत में वरिष्ठ संतों की एक प्रतिनिधि सभा है, और उसके आप जो मुख्य कार्यकारी ग्रुप है, कोर ग्रुप है, उसके आप सम्माननीय वरिष्ठ संत हैं। और जब भी कोई नीति निर्धारण होता है, संतों का पारस्परिक मिलन होता है, तो उसमें आपकी अग्रणी भूमिका साथ साथ रहती है। तो ये संयोग ही है कि पूज्य महाराज श्री स्वामी माधव प्रियदास जी महाराज भी इन दिनों यूके प्रवास में थे, और जैसे ही हमारा परसों आना हुआ, आते ही जब पता चला तो हमें बड़ा आनंद हुआ कि भारत में तो समय समय पर बैठकों में
एक साथ होते ही हैं, लेकिन यहाँ आकर के मिलना और इस रूप में लेस्टर गीता फेस्टिवल में आपका आशीर्वाद प्राप्त होना निश्चित एक सौभाग्य और आनंद का विषय है। पूज्य महाराज श्री। व्यासपीठ को वंदन। व्यासपीठ की परम गरिमा रूप पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में वंदन। खास करके हमारी लाडली शिवानी जी को हार्दिक अभिनंदन। हमें आशा ही नहीं विश्वास है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में शिवानी जी भारत और ब्रिटेन के संबंधों को और मजबूत करेगी। भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों की रक्षा में और नित्य निरंतर कार्यरत है, विशेष कार्यरत रहेगी। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी बहन जी के साथ है। महाराज श्री, आपने कहा एक संयोग है, संयोग ही नहीं, आपका दर्शन हमारे लिए सौभाग्य संयोग है। सोचा भी नहीं था यहाँ दर्शन होगा। असल में मैं, हमारे रमन लाल जी बैठे हैं, सनातन मंदिर को 50 साल पूर्ण हुआ। मैं आया था तो मंदिर में पोस्टर देखा और तारीख पढ़ी तो दिल से आवाज उठा कि दर्शन तो हो ही जाएगा। प्यारे भाई बहनों, भारत के जो गणमान्य संत है, जो भारत की आध्यात्मिक धरोहर की रक्षा करने में रात दिन जुटे हैं, उनमें से हमारे वरिष्ठ और मार्गदर्शक वात्सल्य मूर्ति पूज्यपाद महाराज श्री है। जियो गीता जी के माध्यम से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की गीता जी के संदेश आप जानते हैं पूरे विश्व में फैलाए हैं। मैं साक्षी था उन धन्य पलों का। गत श्रीमद् भगवत गीता जयंती का महोत्सव हमने कुरुक्षेत्र में पूज्यपाद महाराज श्री के सानिध्य में बिताया था। मनोहर लाल जी खट्टर थे, हेमंत विश्वा जी थे, कई बड़ी बड़ी हस्तियां थी, अमित शाह जी भी थे और हमारे हिंदू धर्माचार्य सभा के महामंत्री जी परमात्मानंद जी, सरस्वती जी महाराज भी थे और कई गणमान्य संत थे। मेरे ख्याल से बाबा रामदेव जी भी थे उस समय। वो जो दृश्य था आपने शायद टीवी पे देखा होगा, एक साथ गीता जी का गान हुआ था। 18,000 छात्र हमारे साथ सामने थे और करीब 1.25 करोड़ भारतीयों ने एक साथ गीता गान उस समय गीता जयंती के दिन किया। पूज्य महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता जी के संदेश के लिए
पूरा जीवन अर्पण कर दिया है। मुझे वो और गौरवपूर्ण पल याद आती है स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से। प्यारे भक्तों, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में स्कूलों में गीता जी के कोर्स को इंट्रोड्यूस किया। उस समय वो बड़ी धन्य पल थी सभी भारतवासियों के लिए। और मुझे गुजरात से आता हूं तो गुजरात की बात तो करूंगा। शिक्षा मंत्री हमारे गुरुकुल के छात्र हैं पानसुरिया जी। सेम डे उन्होंने भी गुजरात में स्कूलों में गीता जी के कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है। सोचना यह है 75 साल क्यों लगे। समझ सकते हैं आक्रांता थे, कोई तलवारों से, कोई और ढंग से। तो उनके बारे में तो हमें कोई अफसोस नहीं होता है। आजाद भारत में 75 साल तक विशाल हिंदू समाज अपने ही मूल्यों से वंचित क्यों रखा गया। 75 साल का पीरियड, उसको हम डार्क पीरियड मानते हैं। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट, उन्होंने 80% भारतीय समाज को अपनी ही मूलभूत विचारधारा से कट ऑफ रखा। आज पुनः सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय तो हो रहा है, कुछ बादलें भी हैं और बादल हटने चाहिए। देखिए, ऐसी संविधान की परंपरा बनी है। लघुमती समुदाय के लोग अपने धर्म की बात पढ़ा सकते हैं। भारत में 80% टैक्स पेयर्स आर हिंदूज। वो न स्कूलों में रामायण की बात कर सकते हैं, न स्कूलों में महाभारत की कथाएं पढ़ा सकते हैं, न भगवत गीता के और उपनिषदों के बहुमूल्य जीवन सूत्रों को पढ़ा सकते हैं। ये हमारा देश का दुर्भाग्य रहा है। हम चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। मुझे आनंद है वो परिवर्तन जहां गीता का ज्ञान हुआ, गीता का गान हुआ, उस कुरुक्षेत्र की पावन धरा में गुरुदेव के सानिध्य में और परिवर्तन की लहर जाग चुकी है। अब उसको कोई नहीं रोक सकता। प्यारे भाई बहनों, हमें हमारे ही रूट से अवगत रहना बहुत जरूरी। यदि हम अपने को ही नहीं जानेंगे, आत्मगौरव को नहीं पहचानेंगे, तथागत बुद्ध ने कहा है अप दीपो भव। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम अपने को जानो, तुम कौन हो। यदि हमारा विशाल समुदाय उसको ये पता चलेगा, पता चलना चाहिए कि आप कितनी महान विरासत के वारिसदार हो। मोस्ट एंशिएंट एंड एवर फ्रेश धर्म आपको मिला है। हमें गौरव होना चाहिए कि हम हिंदू हैं।
दुखद बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहे बिना नहीं रहा जाता। पार्लियामेंट में एक जिम्मेवार पार्टी के नेता राहुल जी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। हम कहते हैं कि हिंदू सहिष्णु है, और सहिष्णुता का प्रमाण यह है कि इतना बोलने के बाद भी आप सलामत हैं। कौन सी बेतुकी बात है। हमने तो ये सुना था कि राहुल जी मोहब्बत की दुकान लेकर के फिरते हैं, कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी दर्शन के लिए कहीं जाते हैं। तो सोचा कि ठीक है, दिल में परिवर्तन होता होगा, लेकिन उनकी बातों से उनकी नफरत हमारे सामने आ जाती है। बात मोहब्बत की करना और नफरत को फैलाना ये कहाँ का न्याय है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे राजनेताओं को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। प्यारे भाई बहनों, श्रीमद् भगवत गीता की यदि बात करें, हमें तो सुनना है महाराज श्री को, उनका प्रेम मुझे यहां खींच लाया है। श्रीमद् भगवत गीता जी का यही एक संदेश है, बे अर्जुन। हमें अर्जुन बनना चाहिए। अर्जुन की कथा आप जानते हैं, जब महाभारत का युद्ध हुआ, होने की तैयारी थी, अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए हैं, दुर्योधन भी आए हैं। अर्जुन जी तो सेवक है, तो चरणों में बैठ गए। ये बड़ा अहंकारी है, तो सर के पास बैठा। अहंकारी लोग सर पे चढ़कर के बैठते हैं। अब देखिए भगवान की बात, वो तो नाटक कर रहे थे, सोए नहीं थे। कृष्ण को समझना आसान नहीं है। उसकी मूर्ति जितनी टेढ़ी है ना, उतना ही उनको समझना बड़ा टेढ़ा है। जब जागते हैं तो अर्जुन को देखा, ये क्या संदेश है? जो निरहंकारी है, जिसके पास ईगोलेस पर्सनालिटी है, उनके सामने ही ठाकुर जी दृष्टि करते हैं, अहंकारी को बुलाना पड़ता है। अर्जुन जी कब आए हैं? दुर्योधन ने कहा कि महाराज हम भी बैठे हैं इधर। ओ अच्छा, आप दोनों यहाँ आए, बोलिए क्या है? बस हमारी सहायता कीजिए, कथा आप जानते हैं। भगवान ने कहा देखो, हमारी यादव सभा में निर्णय हुआ है, एक और निहत्था में और दूसरी ओर मेरी एक अक्षौहिणी यादवों की अपराजयी सेना। मैंने अर्जुन को पहले देखा है, तो अर्जुन का चांस प्रथम है। पसंद करो अर्जुन, आप क्या चाहते हो? आप सब जानते हैं अर्जुन ने क्या मांगा। क्या मांगा? निहत्थ कृष्ण। दुर्योधन ने तो यही सोचा होगा, पागल है, मेरा काम कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप होते तो सेना मांगते या भगवान कृष्ण को मांगते? ठीक है, मैं इस सवाल जरा दोहराता हूं। एक और वॉरेन बफेट का बैंक बैलेंस है, बिल गेट का बैंक बैलेंस है, दूसरी ओर भगवान कृष्ण है, क्या मांगोगे? बहुत अच्छा। एक और बहुत सुंदर पति है, एक और बहुत सुंदर पत्नी है, और एक और भगवान है, क्या मांगोगे? झूठ बोले कौवा काटे। बे अर्जुन, टोटल डेडिकेशन।
संपूर्ण शरणागति करिष्ये वचनम तव, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। दुर्योधन पागल को पता नहीं है कि युद्ध सेनाएं नहीं जीतती है, युद्ध दिमाग जीतता है। और कृष्ण की कृपा से और ध्वजा में बैठे, देखिए ध्वजा में बैठे हनुमान जी महाराज और रथ पे बैठे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीता है। ये हमारा जीवन मंत्र होना चाहिए। पूज्य महाराज जी के दर्शन करके दिल में बड़ी प्रसन्नता होती है। सदैव सौम्य मूर्ति, सदैव हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। कई बार इंटरफेथ मीटिंग में उनकी छत्र छाया में संवाद होते हैं, प्रेरणाएं मिलती रहती है। यहाँ जिन मित्रों ने, हमारे जीत आदि ने ये सुंदर आयोजन किया है, इस आयोजन में जिन्होंने सहकार दिया है और जो आप सब आए हैं, आप सब पर भगवान श्री कृष्ण जी की परम तत्व की परम करुणा सदैव बरसती रहे। आप जिस देश में बसे, भारतीय होकर के बसे। आपको ही भारतीय होना काफी नहीं है, आपको आपके भविष्य को सोचना है। सोचिए कि आपके बच्चों की क्या स्थिति है, आपके लड़के लड़कियों की क्या स्थिति है। यदि हम उनको सही ढंग से हिंदुइज्म नहीं समझाएंगे तो लव जिहाद होता रहेगा और स्कूलों में ग्रूमिंग होता रहेगा। हमें अपने बच्चों को वे कौन है वो सिखाना चाहिए। और मैं समझ सकता हूं कि ये सारा काम मेरी माताएं और बहनें अच्छी ढंग से कर सकती है। माता की गोद को हम गुरुकुल मानते हैं, इसीलिए तो शिवानी जी पे हमारी आशा है। तो आइए हम सब मिलकर के हमारे भविष्य को उज्जवल बनाए। आपका इतना समय लिया, मैं तो महाराष्ट्र के आशीर्वाद के लिए आया हूँ। सभी को प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु। जय कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय स्वामीनारायण, जय भारत। स्वामी जी, आपका आज आना और लेस्टर गीता फेस्टिवल और लेस्टर के वासियों को अपना आशीर्वाद देना वैसा ही है जैसे हनुमान जी का लक्ष्मण को संजीवनी देना। स्वामी जी, कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत हैं इस दुनिया में, मगर गीता जी का भाव अनोखा है। आपने इन्हीं कुछ भावों की चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। Today, I have the highest privilege of being honored to introduce the most revered international saint and an authority on the Srimad Bhagavad Gita, whom we are very, very lucky and honored to have amongst us. महाराज जी, लेस्टर की ये धरती और लेस्टर की ये वासी जीवन भर आपका आभारी रहेंगे, क्योंकि आपने अपने गीता ज्ञान की वर्षा के लिए अपने बिजिएस्ट शेड्यूल में से लेस्टर को हर वर्ष एक सप्ताह देने का फैसला किया है। फिर से और महाराज जी, हम भी आपसे वादा करते हैं
कि लेस्टर में जो आपका प्रोग्राम होगा उसको सफल बनाने के लिए हम सब लेस्टर के वासी अपना भी खून पसीना एक लगा देंगे। महाराज जी, हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हैं वो सब आपकी कृपा है, और मैं जो आज यहाँ मंच पर खड़ा हूँ वो केवल और केवल आपका आशीर्वाद है। महाराज जी, ना मुझ में है सूर, ना मुझ में है ताल, ना मुझ में है सूर, ना मुझ में है ताल, मैं तो सिर्फ आपके हूं प्रेम में निहार। जैसे आप चलाएं वैसे मेरी चाल, जैसे महाराज जी आप चलाएं वैसे मेरी चाल, मेरा कुछ नहीं, ये है सब आपका कमाल। महाराज जी, ना मैं डमरू, ना मैं ढोलक, ना मैं तबला, ना मैं सितार, मैं तो हूं बस बांस की एक पुंगार, जिससे आपने दिया है निखार। मुझको ऐसा है तराश दिखाया कि मेरे शब्दों से लेस्टर रसाया, ना मैं सूर, ना मैं मीरा, बन गया हूं कोयला से हीरा। इसी शब्दों से महाराज जी, 2 दिन और हैं अभी, सारा आ गया। महाराज जी, लेस्टर के वासी मेरे इंतजार में 2 दिन के लिए नहीं है, आपके शब्दों से। तो महाराज जी, I would like to request you to shower your choicest blessings on Leicester Gita Festival on the 2nd day today. Warm welcome to Swamiji. वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपरा, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, शुक्रपा बिहारिणे नमः, गीतामृतुहे नमः। 1-2 मिनट के लिए भगवान का पावन मंगल नाम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल महाराज श्री सोनमाधव प्रियदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने जहाँ एक भगवद गीता की कुछ प्रेरणा हम सबको दी, वहीं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, भारत भूमि के प्रति, भारत के गौरव के प्रति उनके हृदय की पीड़ा को भी हमने अनुभव किया। यही नहीं, उन्होंने जो कहा कि हम कहीं भी रहें, भारत से बाहर भी भले ही, प्रारब्ध की बात है। प्रारब्ध कब किसको कहाँ ले जाती है वो निश्चित अपनी अपनी स्थिति है। कहीं भी रहें लेकिन अपने राष्ट्र के, अपने भारत गौरव की वृद्धि के लिए रहें, भारतीय बनकर रहें। जैसे भगवद गीता का एक सूत्र है, संसार में रहना बुरा नहीं, लेकिन संसार में रहकर भगवान के बन करके रहें। आज शिवानी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने आज प्रथम दिन ही जो नवनिर्वाचित हुई आत्मा के भाव से, और ये हम समझते हैं कि शिवानी का भी सौभाग्य है कि पहले ही दिन उन्हें यहाँ, इससे पहले कि वो संसद में पहली बार प्रवेश करते, पहले ही दिन आज उन्हें भगवद गीता मिली है। गीता उत्सव में आने का संयोग बना है और हमें बड़ा अच्छा लगा जब शिवानी जी को भगवद गीता भेंट की। भगवद गीता और साथ ही यही तो नहीं छोड़ दी, हाँ है। तो जब भगवद गीता को भेंट किया तो उन्होंने बड़े श्रद्धा आदर के साथ मस्तक पे लगाया, हृदय से लगाया, प्रणाम किया गीता जी को। और हमें पूरा विश्वास है, जैसे महाराज श्री ने भी ये विश्वास शिवानी जी के साथ जोड़ा कि वो अपने राष्ट्र की गरिमा और भारत फिर ब्रिटेन में रह रहे हैं, तो गीता कर्तव्य बोध का ग्रंथ है। हम जहाँ हैं, हमारा क्या कर्तव्य है उसे अच्छी ढंग से महाराज श्री ने कहा, उसमें हम अपना बेस्ट दे, निश्चित देना ही चाहिए अपना बेस्ट, लेकिन साथ ही साथ वो संस्कार भी सुरक्षित रखें जो भारत का गौरव है। और इस विश्वास के साथ ही शिवानी जी के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आपको ये कार्यकाल जो है, ये टर्म जो है एज पार्लियामेंटेरियन करके बहुत ही अच्छी प्रेरणा बने। जय श्री कृष्ण। तो संकेत चल रहा था, महर्षि ने जो कहा कि जहां भी हम रहें भारतीय बनकर रहें, अपने देश को ना भूलें, अपने देश की परंपराओं को ना भूलें। और उसके साथ जो महात्मा आपका अच्छा मकान है, आप अच्छी बात है। हमने बात बताई
दोनों की सही तथ्य हमारे सामने रखी है। घटना इंडियानी अपनी जो पार्टी जो इंडियानी आज एक कोशिश करता है जैसी वो कभी उनकी कहा अपने देश की कोई कमी ढूंढने लगे। अरे भाई कुछ सड़कें देख कर बाहर का जगह देख करके और अपने देश की स्थिति देख करके तो ये सोच लेंगे कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है। ऐसा नहीं, हमारा देश निश्चित रूप से अब वैसे भी उसका अलग रूप है, लेकिन हमारे देश का जो गौरव है, जो वैल्यूज है, जो मॉरल्स है, जो आइडियल्स हैं, जो एथिक्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो जो भारत की है, वो विश्व में आपको कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती। जो हार्मनी है, जो पीस का मैसेज ऑफ पीस है, वो विश्व